ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ نانا، آپ دیکھنا، رات کے 12 بجے میں آپ کو اس درخت کے نیچے کھڑی نظر آؤں گی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں مذاق میں نانا کو کہنے لگی۔ میری بات سن کر نانا فوراً سنجیدہ ہو گئے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، خبردار جو تم نے وہاں جانے کی کوشش بھی کی، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ ان کی بات کے جواب میں مسلسل ہنس رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر اپنے نانا کو تنگ کر رہی تھی، ورنہ میں خود بہت زیادہ ڈرپوک تھی۔ مجھے شروع سے ہی جنوں اور بھوتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ بچپن میں بھی جب میرے کزن جنوں اور بھوتوں کی باتیں کرتے تھے، تب میں جلدی سے سائڈ پر ہو جاتی تھی یا پھر بڑوں سے بات کرنے لگتی تھی، کیونکہ ایک بار جب میں کوئی بات سن لیتی تھی تو وہ بات تقریباً 2 ہفتوں تک میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھی، اور تقریباً 2 ہفتے میرے خوف میں ہی گزرتے تھے۔ میری امی نے بھی میرے تمام کزنوں کو اچھی طرح سے سمجھایا ہوا تھا کہ اس لڑکی کے سامنے ایسی کوئی بھی بات نہ کرو، ورنہ یہ ہمارا رات کے وقت جینا حرام کر دیتی ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ شام کے وقت میں اپنے کزنوں کی محفل میں بیٹھ گئی۔ میرے کزن اس وقت گاؤں کا ایک قصہ چھیڑے ہوئے تھے، جہاں پر گاؤں کے ایک شخص کے پیچھے ڈائن لگ گئی تھی۔ یہ بات تو میں نے سن لی، لیکن اس کے بعد میں جلدی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ لیکن وہ بات مسلسل میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں کچن میں جاتی تب بھی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ اگر کمرے میں جاتی تب بھی مجھے ڈر لگتا کہ کوئی میرے پیچھے کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں امی کے پاس چلی گئی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے یوں اچانک بلا وجہ روتا دیکھ کر امی پریشان ہو گئیں اور پوچھنے لگیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امی نے مجھے ڈانٹا، کہنے لگیں کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اپنے کزنوں کی محفل میں مت بیٹھا کرو، لیکن تم میری بات سنتی نہیں ہو، بعد میں اپنے لیے پریشانی پیدا کر لیتی ہو۔ پھر امی مجھ پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر پھونکنے لگی، چونکہ حقیقت میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی، صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ اسی وجہ سے مجھے پھر بھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ مجھے ابھی بھی بہت شدید ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں نے امی کو بہت زیادہ پریشان دیکھا تو مجھے ان پر ترس آ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں مزید پریشان نہیں کروں گی، بلکہ خود ہی اس ڈر سے نپٹوں گی۔ ہمارے گھر میں سب کا علیحدہ علیحدہ کمرہ تھا۔ میرا بھی اپنا کمرہ تھا، جو کہ میری مرضی سے ہی سجایا گیا تھا۔ پہلے تو میں نے کمرہ لینے کی ضد کی تھی، لیکن جب مجھے کمرہ ملا تھا تب مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ تنہائی میں انسان زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ ہزاروں طرح کی سوچیں ہوتی ہیں جو اسے پریشان کرتی رہتی ہیں۔ اس رات میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ تقریباً آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے خوف سے اپنے چاروں طرف دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت میرا کمرہ بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ پہلے میرے کمرے کا رنگ گلابی تھا، لیکن اس وقت میرے کمرے کا رنگ سیاہ پڑا ہوا تھا۔ اچانک ہی کمرے کی لائٹ چلی۔ مجھے کمرے کے بیچوں بیچ ایک عورت کھڑی نظر آئی، جس کے منہ کے آگے بال پڑے ہوئے تھے۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کوئی چڑیل معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، لیکن بہت جلد مجھے آنکھیں کھولنا پڑی جب اس نے میرا نام پکارا۔ میں نے جب دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور کمرے سے نکل کر بھاگنے لگی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو قریب ہی میری امی میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی نے مجھے تسلی دی
और कहा कि डरो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक डरावना ख्वाब था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो पूरी रात में अम्मी के साथ ही गुजारी। उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी कि कुछ भी हो जाए कभी भी अपने कज़नों की महफिल में नहीं बैठूंगी। लेकिन मेरी ये तौबा भी ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरे कज़न की, जिनकी मेरे साथ सबसे ज़्यादा बनती थी, हम लोगों में सिर्फ एक ही इख्तलाफ था, और वो ये था कि बस वो जिनों भूतों की बातें करते थे। शाम का वक्त था। मैं दोबारा से अपने नाना के घर चली गई और उन पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। सारा घर उस वक्त बहुत ज़्यादा खामोश था। ये खामोशी मुझे हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता था कि कोई ना कोई चीखता चिल्लाता रहता था। या तो मेरे कज़न आपस में लड़ रहे होते थे या फिर आपस में बड़े बहस कर रहे होते थे। लेकिन आज ऐसा कोई भी सीन नहीं था। मैंने जब नाना से इस बारे में पूछा तो नाना ने गहरी सांस ली और कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या बताऊं, हम इस दरख्त की वजह से अब बहुत तंग आ गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस दरख्त से कैसे पीछा छुड़वाएं। इस दरख्त ने तो हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। वो चेहरे से तो खुद परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने उन्हें ज़िंदगी में पहली बार इस तरह परेशान देखा था। ये बात दरख्त के मुतल्लिक थी, यानी ये बात जिन्नात के मुतल्लिक थी। मैंने यही बेहतर समझा कि मैं उनकी बात ना सुनूं, क्योंकि बाद में दोबारा मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो जानी थी। लेकिन मेरा बेड़ा गर्क मेरी कज़न का, जो मुझे डराने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं उससे मिलने के लिए उसके कमरे में चली गई थी। जैसे ही मैं उसके कमरे में दाखिल हुई, वो मेरा नाम लेकर कहने लगी, अरे शब्बो, तुझे मालूम है कि आज क्या हुआ? उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से कहा कि मुझे मालूम नहीं है और ना ही मैंने कुछ सुनना है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठाते हुए कहने लगी, अरे एक बात तो सुन, बहुत ही अहम बात है, तुझे भी आगे इससे मदद मिल सकती है। वो तड़के लगा लगा कर मुझे बताने लगी और फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चला कि रात को उनके घर में कुछ मेहमान आए थे। वो मेरे कज़न के ही कुछ दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त रात के वक्त चहलकदमी के लिए बाहर निकला और इस दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी ज़ोरदार चीख पूरे घर में गूंजी। तमाम घर वाले परेशानी से उठकर बाहर गए तो वो बेहोश दरख्त के नीचे पड़ा था। उसकी ये हालत देखकर सब परेशान हो गए। मेरा कज़न तेज़ी से उसे अस्पताल लेकर चला गया, लेकिन इतना वक्त गुजर चुका था और उसे अब तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ये बता रहे थे कि वो खौफजदा हो गया है, जिसकी वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। उसकी वजह से ना सिर्फ मेरा कज़न बल्कि नाना भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनकी आंखों का तारा था। उसके बारे में तो ये भी मशहूर था कि उसकी माँ कभी भी उसे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। अगर वो कभी गली के कोने में भी जाता तब भी उसकी माँ उसके साथ साथ जाती थी। आज वो अपनी माँ की नज़रों के सामने इस कदर बुरी हालत में मौजूद था। मेरी तो ये सोच कर ही जान निकल रही थी कि उस मासूम लड़के के साथ किसी ने ये सब कुछ कर दिया और उसे रहम भी नहीं आया। अब तो मैंने खुद से पक्का इरादा कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो, रात के वक्त कभी भी नाना के घर नहीं आया करूँगी। हालात अब कुछ ज़्यादा ही पेचीदा होते चले जा रहे थे। अब मेरे बहुत से कज़न भी डरने लगे थे। नाना हर बार परेशानी में यही बात कहते कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे सोचना चाहिए था कि अभी मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे नवासे नवासियाँ भी मौजूद हैं। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो वो मेरी वजह से इन सबको तकलीफ़ पहुँचाना शुरू कर दे। मेरी मोमानी तो ये घर छोड़कर ही चली गई थी, क्योंकि एक दिन उनका बेटा इसी वजह से डर गया था और तकरीबन 2 हफ्तों तक वो बेहोश रहा था। तीसरे हफ्ते जब उसे होश आया तब वो रोने लगा और कहने लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। अगर मैं यहाँ पर रहा तो वो मुझे मार देगा।
अपने बेटे की ये हालत मुमानी से बर्दाश्त ना हुई, बल्कि अगर उनकी जगह कोई और माँ होती तब भी वो यही करती, अपने बेटे को यहाँ से लेकर चली जाती। मामू ने भी ऐसा ही किया। थोड़े ही अरसे बाद वो एक अलहदा घर में शिफ्ट हो गए। उस दिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार नाना के कंधों को झुके हुए देखा था। नाना ने हमेशा यही ख्वाहिश की थी कि उनके बेटे हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया था कि उनके बेटे इस घर से निकलने के लिए पर तोल रहे थे। उन्होंने नाना को भी चलने के लिए कहा, लेकिन नाना ने साफ साफ कह दिया कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकता, यहाँ पर तुम लोगों की माँ की यादें हैं। मेरे मामू ने निहायत ही बदतमीज़ी का मुजाहरा किया और कहा कि अब हम मरे हुओं के लिए अपने जिंदा बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, लिहाजा हम तो यहाँ से निकल रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो ये बात नॉर्मल अंदाज में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह बदतमीज़ी का मुजाहरा किया और नाना का दिल तोड़ दिया। उस दिन बहुत ज़्यादा रोए थे। सिर्फ मैं और मेरी अम्मी ही थे जो उस वक्त नाना के पास मौजूद थे। हमने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नाना ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, अब सब कुछ ख़राब हो गया है। मेरा आशियाना बिखर गया है और इस आशियाने को दोबारा से समेटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने अब किसी हद तक अपने खौफ पर काबू पा लिया था, क्योंकि मुझसे नाना की ये हालत बर्दाश्त नहीं होती थी। तमाम लोग नाना को छोड़कर चले गए थे। मैं अपना शुमार उन लोगों में नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं हमेशा हमेशा के लिए नाना के पास ही रहना चाहती थी। इसी वजह से मैंने डर को कहीं पीछे छोड़ दिया और नाना के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब तो मैं रात के वक्त भी नाना के पास चली जाती और उनसे बैठकर बातें करती रहती। जब तक वो सो नहीं जाते थे तब तक मैं उनसे बातें ही करती रहती थी, ताकि उन्हें तन्हाई का एहसास ना हो। और फिर रात देर से मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया। यूं उसके साथ मैं अपने घर वापस चली आती। दूसरी तरफ मामू नाना को छोड़कर तो चले गए थे, लेकिन अब उनसे घर नहीं संभाला जा रहा था। आए रोज़ उनके घर में कोई ना कोई झगड़ा होता, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनके बच्चों की ज़िंदगी असरअंदाज हो रही थी, बल्कि उनके आपस के मामलात भी ख़राब हो रहे थे। उन्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया। एक दिन उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल की और उन्हें कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। घर की जिम्मेदारी वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक मैं अब्बा के साथ मौजूद था तब तक ये सब कुछ अब्बा ही देखते थे, लेकिन अब जब सब कुछ मेरे कंधों पर आ गिरा है तो मुझे पता चल रहा है कि ये किस कदर मुश्किल काम है। दूसरी तरफ मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं उससे घर के अखराजात चला सकूं और साथ साथ बच्चों की फ़ीसें भी दे सकूं। अब्बा के होते हुए उनकी पेंशन से मुझे काफ़ी सहारा हो जाता था। अम्मा ने मामू की तमाम बातें सुनी और मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। वो मुझसे कोई मशवरा मांग रही थी। मैंने जल्दी से कह दिया कि मामू को वापस बुला ले। फिर अम्मी ने भी ऐसा ही किया और मामू को वापस बुला लिया और उन्हें यह भी तसल्ली दी कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरी बेटी का भी डर ख़त्म हो गया है, ये भी खुशी से नाना के घर जाती है। इसके साथ आज तक कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। मामू ने जब ये सुना तो वो खुश हो गए, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों के लिए ही बेहतरी चाहता है और मामू यही चाहते थे। थोड़े अरसे पहले नाना के घर से जो रौनक ख़त्म हो गई थी वो रौनक दोबारा से लौट आई। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि सब कुछ दोबारा से ठीक हो गया है। नाना भी बहुत खुश थे। वो हमेशा मुझे खुशी से यही बात कहते थे कि ये सब कुछ मेरी बेटी की वजह से हुआ है। अगर मेरी बेटी ना होती तो कभी भी अपने बेटे से दोबारा ना मिल पाता। अब तो वैसे भी मेरी बेटी बहुत बहादुर हो गई है, इसे तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। वाकई एकदम से मेरा सारा खौफ ख़त्म हो गया था। एक दिन मैं अपने कज़नों के साथ बैठी जिन्नों भूतों की बातें कर रही थी, जब अचानक ही मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ फेरा हो।
मैंने तेजी से पीछे पलटकर अपनी कज़न को देखा और उसे थप्पड़ मारा। मेरी कज़न दर्द से बिलबिला उठी और कहने लगी, क्या हो गया है? पागल हो गई हो? मुझे क्यों मार रही हो? मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने मुझे छेड़ा था। तुम्हें पता भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई मेरी गर्दन को हाथ लगाता है। मेरी बात सुनकर वो हैरानगी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर कहने लगी, अरे वाकई तुम तो पागल हो गई हो। तुम्हें हाथ लगाना तो दूर की बात, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है। ये साथ बैठी मेरी बहन से पूछ लो। उसने जल्दी से अपनी बहन की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी 4 साला बहन की तरफ देखा और सोचने लगी, अब जाहिर सी बात है कि ये अपनी बड़ी बहन की ही गवाही देगी। इसलिए मैंने उसे कह दिया, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं करना। मेरी ये बात सुनकर मेरी कज़न हत्थे से ही उखड़ गई और फिर कहने लगी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो तुम मुझे क्यों वार्निंग दोगी? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया। अब वो ओवर रिएक्ट कर रही थी। उसकी ये हरकत देखकर बाकी तमाम कज़न भी मुतवज्जो हो गए और उसे डांटते हुए कहने लगे, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? तुम्हें बड़ों ने तमीज़ सिखाई है क्या? तुम वो तमीज़ भूल गई हो? मेरी कज़न दोबारा से सीधी होकर बैठ गई, मेरी मदद करने लगी और कहने लगी, देखो मेरी बात का यकीन करो, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया और तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। इतना तो मुझे भी पता था कि वो झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुझे लगा था शायद उसने मेरे साथ मजाक किया हो। लेकिन जितनी संजीदा वो नज़र आ रही थी, अब तो मुझे लगने लगा था कि वाकई उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर कौन था जिसने मेरी गर्दन पर हाथ फेरा था? अचानक ही मेरा दिल दोबारा खौफ से भर गया। मैं अपने कज़नों के बीच में से उठ गई और उन्हें कहने लगी कि मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है। जब भी मैं खौफज़दा होती थी मेरा चेहरा लाल हो जाता था। उस वक्त भी मेरा चेहरा लाल था, जिसे देखकर मेरे सबसे बड़े कज़न को अंदाज़ा हो गया कि मैं दोबारा से डर गई हूँ। इसीलिए वो मेरा मजाक बनाते हुए कहने लगा, अरे मैं तो समझा था कि तुम बहुत बहादुर हो गई हो, लेकिन तुम तो अभी भी वैसे की वैसी डरपोक हो। एक छोटी सी चीज़ तुमको डरा कर रख देती है। अगर कभी तुम्हारे सामने वाकई कोई भूत आ गया तब तुम क्या करोगी? उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे कहने लगी, अगर इंसान का चेहरा अच्छा ना हो तो इंसान को बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए। खुदा ना करे कभी मेरे साथ ऐसी कोई नौबत पेश आए। अचानक ही मेरी नज़र घर के दरवाजे पर पड़ी। मुझे यूं लगा जैसे मेरा भाई वहाँ पर खड़ा हो। मैंने अपने कज़न को कहा, ठीक है अभी मैं चलती हूँ। मेरी बात सुनकर कज़न कहने लगा, अरे तुम इस अंधेरे में अकेली कैसे जाओगी? मुझे पता था कि उसने मेरे भाई को नहीं देखा, इसलिए मैं बहादुर बनते हुए कहने लगी, मैं पहले भी अकेली जाती रहती थी। जबकि दिल ही दिल में मैं ये सोचकर हंस रही थी कि बाहर ही मेरा भाई खड़ा है और किसी को भी पता नहीं है। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन तो उस वक्त निकली जब मैं दरवाजे से बाहर निकली, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान नहीं था। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि दोबारा घर के अंदर चली जाऊं और अपने कज़न को बोलूं कि वो मुझे घर छोड़कर आ जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उसके सामने ये बोल कर आई थी कि मैं अकेली जाती रहती हूँ और अब मैं किसी से नहीं डरती। अगर अब मैं दोबारा उसके पास चली जाती तो वो कई हफ्तों तक मेरा मजाक बनाता रहता। वैसे भी वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मैं जानबूझकर खुद को दोबारा से नई मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। इस वजह से मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए आज ही घर जाना है। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बाद में जो कुछ मेरे साथ होगा वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। हिम्मत करके मैं चल तो पड़ी, लेकिन रास्ते में ही मेरे कदमों ने चलने से इनकार कर दिया। खौफ से मेरा दिल कांप रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मुझे अंधेरे से शुरू से ही बहुत डर लगता था और अभी मैं बिल्कुल तन्हा थी। मुझे चलते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे से तेज़ी से गुजरा हो।
ये एहसास रूह को लर्जा देने वाला था। मैं डर के मारे वहीं पर रुक गई और खौफ से पीछे देखने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद कोई मेरे दाएं जानिब से गुजरा, फिर मेरे बाएं जानिब से गुजरा। जितनी उसकी रफ्तार थी वो देखकर मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई और ही मखलूक है। लेकिन वो मखलूक यहाँ पर क्या कर रही थी? मैंने खुद से फजूल सा सवाल किया, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं इस वक्त एक सुनसान इलाके में हूँ, और सुनसान इलाके में ऐसी चीज़ों का पाया जाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पाँव पकड़ लिए हों। मैंने नीचे की तरफ देखा तो अंधेरे में मुझे खौफनाक सा चेहरा नजर आया। एक ज़ोरदार चीख मेरे मुंह से निकली। मैंने जल्दी से अपना पाँव छुड़वाया और भागने लगी। तकरीबन चंद ही मिनटों के बाद मैं अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। अम्मी गालियाँ देती देती दरवाज़ा खोलने के लिए आईं, लेकिन मेरी हालत देखकर परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी, मेरा बेटा क्या हो गया है? तो मैं अम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। दोबारा जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में मौजूद थी, लेकिन वो मंजर अभी तक मेरी नज़र के सामने घूम रहा था, जहाँ पर एक अजीब व गरीब मखलूक ने मेरे पाँव को ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मैं अम्मी के गले लग गई और उन्हें थोड़ी देर पहले होने वाले वाक़ये के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर अम्मी चंद लम्हों के लिए तो खामोश हो गई, फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि ये मेरा वहम नहीं है बल्कि ये हकीकत है। मैंने खुद अपने कदमों में उसके हाथों का लम्स महसूस किया है। मैंने खुद उसका चेहरा देखा है। मैं ये बात नहीं भुला सकती। जबकि अम्मी मुझे मुसलसल यही कहे जा रही थी कि यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी की बात सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, क्योंकि मैं अम्मी से बहस नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था कि अम्मी मुझे वो किस्सा भुलाने के लिए ये सब कुछ कह रही हैं। काफ़ी देर तक अम्मी मेरे पास ही बैठी रही। उसके बाद जब अम्मी मेरे करीब से उठकर जाने लगीं तो मैंने अम्मी को रोक दिया और उन्हें कहा कि खुदा के लिए मत जाएं, वरना मुझे दोबारा से डर लगेगा। अम्मी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस किचन में ही मौजूद हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या तुम्हें ज़रा सा भी खौफ महसूस हो तो मुझे आवाज़ दे देना। ये कहकर अम्मी कमरे से बाहर चली गई। अब मैं कमरे के अंदर बिल्कुल तन्हा मौजूद थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे मेरे अलावा भी कमरे के अंदर कोई हो जो मुसलसल बेचैनी के साथ चक्कर काट रहा हो। वो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मुझे हाथ ना लगा पा रहा हो। अम्मी के जाते ही कमरे में एक बहुत ही गंदी बदबू फैल गई, जिसकी वजह से मेरा दिल ख़राब होने लगा। मैंने अम्मी को ज़ोर से पुकारा। अम्मी जल्दी से कमरे में आई और मुझे कहने लगी, अब क्या हो गया है? मैंने उन्हें कहा कि कमरे में बहुत गंदी बदबू फैली हुई है। मेरी बात सुनकर अम्मी चेक करने लगी और फिर मुझे देखकर कहने लगी, मुझे लगता है ये खौफ तुम्हारे सर पर चढ़ गया है, थोड़ा होश से काम लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। ये कहकर वो दोबारा से कमरे से बाहर चली गई। अम्मी का रवैया देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी हैं। अब अगर मैं उन्हें मज़ीद कोई भी बात कहती तो वो मेरी बात का यकीन ना करती और उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करती। लिहाजा मैं खामोशी से ही अपने कमरे में लेट गई। मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पाँव को अपने हाथों में पकड़ा हो। वो बहुत ही ठंडे हाथ थे। मैंने आंखें मूंद ली और जितनी भी आयात आती थी उनका विर्द करने लगी। थोड़ी ही देर बाद मेरे पाँव दोबारा से आज़ाद हो गए, जिससे अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि मेरे साथ कोई और गैर मखलूक भी मौजूद है जो कल रात मेरे साथ आई है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं।
वो पूरा दिन मैंने कुरान पाक की तिलावत करते हुए गुजारा। मैं अच्छी तरह से नोट कर रही थी कि जब भी मैं आयत की तिलावत करती मौजूदगी का एहसास ख़त्म हो जाता, लेकिन जैसे ही मैं खामोश होती थी दोबारा से मौजूदगी का एहसास होने लगता था। वो पूरा दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटा था। रात को भी मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी जब अचानक ही मेरा कज़न आ गया। वो चेहरे से बहुत परेशान नज़र आ रहा था। सबसे पहले वो मेरे ही कमरे में आया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी अम्मी कहाँ पर हैं। मैंने उसे बताया कि अम्मी थोड़ी देर पहले बाज़ार गई हैं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि नाना अब्बू की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, वो तुम्हारी अम्मी को बुला रहे हैं। कज़न की बात सुनकर मुझे भी परेशानी होने लगी। मैं अपनी तकलीफ़ को भूल गई और अपने कज़न को कहा कि मैं तुम्हारे साथ अभी चलती हूँ। उसने कहा नहीं, हमने तुम्हारी अम्मी को भी साथ लेकर जाना है। उसके बाद वो तेज़ी से बाज़ार की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो अम्मी के साथ वापस आ गया था। हम तीनों नाना अब्बू के घर गए। नाना अब्बू की तबीयत उस वक्त बहुत ख़राब थी। वो चेहरे से बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, मेरी बेटी इस वक्त बहुत मुश्किल में है, मेरी बेटी की मदद करो, इसको इस मुश्किल से निकालो। वो मेरी तरफ इशारा करके बार बार मेरी अम्मी को समझा रहे थे। मेरी अम्मी ने बेचैनी से मेरी तरफ देखा और फिर नाना अब्बू से पूछने लगीं कि अब्बा आप किस बारे में बात कर रही हैं, क्या हुआ है इसे? इससे पहले कि नाना अब्बू कुछ बोलते, उनकी रूह इस दुनिया से परवास कर गई। नाना अब्बू की अचानक मौत पर हम सबको बहुत बड़ा धचका लगा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि यूं अचानक वो हमें छोड़कर इस जहाने फ़ानी से चले जाएंगे। अम्मी वहीं पर बैठकर रोने लगी। मेरे आंसू भी तेज़ी से बहते जा रहे थे। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि नाना हम लोगों के बीच में नहीं रहे। अभी 2 दिन पहले ही तो मैं नाना के पास से होकर गई थी। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कल का दिन मैंने क्यों अपने नाना अब्बू के साथ नहीं गुजारा। कम से कम मुझे इतना ज़्यादा मलाल तो ना होता। जबकि मामू मुसलसल ये बात कर रहे थे कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ उस दरख्त पर रहने वाली मखलूक ने किया है। अब्बा बोल रहे थे कि वो दोबारा वापस आ गई है। मैंने जब अब्बा से इस बारे में पूछा कि वो गई कहाँ पर थी, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया और ना ही मुझे माजी का कोई किस्सा सुनाया, बल्कि उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि तुम लोगों ने उससे बहुत जल्द अपना पीछा छुड़वाना है, वरना ये तुम लोगों की नस्लों को बर्बाद कर देगी। ये कहकर मामू खामोश हो गए। उनके चेहरे से फिक्रमंदी नजर आने लगी। मेरे दिल में आया कि मैं दोबारा से मामू को अपने ऊपर बीती हुई दास्तान के बारे में बता दूं, लेकिन फिर मैंने एक नज़र अपनी अम्मी पर डाली। मेरी अम्मी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। मामू कहाँ यकीन करते? यही सोचकर मैं खामोश हो गई। नाना अब्बू का जनाजा शाम के वक्त था। उनके जनाजे पर बहुत सारे लोग जमा थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि नाना अब्बू के जितने ज़्यादा जानने वाले मौजूद हैं। हैरत की बात तो ये थी कि जनाजे पर जितनी भी ख़वातीन मौजूद थीं, हम उन ख़वातीन को नहीं जानते थे, लेकिन वो यूं बैन कर रही थीं कि उनके अपने अब्बा हों। ये देखकर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। न जाने क्यों मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मेरी अम्मी भी मुझे मुसलसल यही कह रही थी कि न जाने क्यों मुझे लग रहा है ये इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई और ही मखलूक है। अम्मा की बात सुनकर मैंने भी अपना डर उनके सामने रख दिया। अम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी, मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत करनी होगी। अब्बा ने बताया है कि तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला पर यकीन रखें। जब तक अल्लाह ताला ना चाहे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर अम्मी थोड़ी मुतमईन हो गई और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इस कदर समझदार हो गई है। रात का वक्त था, तमाम घर वाले अंदर लेटे हुए थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी।
काफ़ी देर करवटें बदलती रही, फिर अचानक ही मुझे एक बहुत ही प्यारी खुशबू सूंघने को मिली। उसके साथ ही मुझ पर नींद तारी होने लगी। थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद में डूबी हुई थी। न जाने कौन सा वक्त था जब प्यास की वजह से मेरी आंख खुल गई। मुझे शिद्दत से प्यास का एहसास हो रहा था। मेरा गला भी खुश्क हो गया था, जिसकी वजह से मैं मजबूरन उठ गई और पानी पीने के लिए बाहर चली गई। लेकिन मुझे कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक मेरी नज़र पानी के एक घड़े पर पड़ी, जो कि उस दरख्त के नीचे ही पड़ा हुआ था। लेकिन उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया और उस दरख्त की तरफ चली गई। अचानक ही मैंने देखा कि साइड पर एक नौजवान खड़ा है। मुझे लगा कि शायद वो मेरा कज़न है। मैं उसे पूछना चाहती थी कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? नाना अब्बू ने यहाँ पर आने से मना किया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारा, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसका चेहरा देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो मेरा कज़न नहीं, बल्कि वो तो कोई और ही अजीबो गरीब मखलूक थी, जिसके दांत बड़े बड़े थे, बाहर को निकले हुए थे। उसकी आंखों की जगह गोल गोल गड्ढे थे। उसके मुंह से खून टपक रहा था। कोई भी शख्स उसे देखता तो उसका दिल बंद हो जाता। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा जब मुझे होश आया तब भी वो मेरे सामने ही मौजूद था। मैं उसे देखकर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे चिल्लाता देखकर अम्मी परेशान हो गईं और कहने लगीं, क्या हुआ? मैं बार बार उस तरफ इशारा कर रही थी जहाँ पर वो मुझे खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन मैं मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। लेकिन अम्मी की बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये मेरी माँ ही है। अम्मी मुझे कह रही थी कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। अम्मी की बात सुनकर जब मैंने उस अजीबो गरीब मखलूक की तरफ देखा तो वो बहुत ही अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि अब तुम क्या करोगी? अब तुम किसके पास मदद के लिए जाओगी? यहाँ पर तो कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। वो पूरा दिन मैंने डरते हुए गुजारा। वो मखलूक ना सिर्फ मेरे आसपास मौजूद रही, बल्कि वो मुझे तकलीफ भी पहुंचाती रही। शाम के वक्त मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं करवट बदल सकती। अचानक ही एक बूढ़ा शख्स कमरे के अंदर दाखिल हुआ। आते साथ ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुछ पढ़कर कमरे के अंदर फूंक मार दी। मैंने एक नज़र उस मखलूक की तरफ देखा जो बेचैन हो गई थी। वो बार बार बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाग नहीं पा रही थी। तब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि अम्मी पहले ही नाना अब्बू से इस बारे में बात कर चुकी थी। नाना अब्बू ने उन्हें मखलूक के बारे में बता दिया था और अम्मी को ये भी कहा था कि अगर तुम्हारी बेटी डरे तो तुम उसके सामने यही कहना कि तुम्हारा वहम है। इस तरह वो मखलूक और ज़्यादा खुलकर सामने आएगी। फिर जब वो खुलकर सामने आएगी तो तुम मेरे दोस्त आमिल को बुला लेना, बाकी सारा काम वो खुद संभाल लेगा। अम्मी ने ऐसा ही किया था। शाम के वक्त उन्होंने उस आमिल को बुला लिया था। आमिल ने मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा और कमरे में अमल करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उस मखलूक की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। मेरे कान के पर्दे फटने के करीब हो चुके थे जब अचानक ही वो खामोश हुआ। मैंने सुकून का सांस लिया। इस वक्त कमरा पूरा खाली था। हमारे नाना के घर की उस मखलूक से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट गई थी। उसके बाद हम लोग वहाँ पर पुरसकून अंदाज में ज़िंदगी गुजारने लगे। अब हम आज़ादी के साथ उस दरख्त के नीचे बैठते थे और आज़ादी के साथ घर में घूमते फिरते थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।